बाप की जो देन है, बेहद की बाप की देन, उसके मुकाबले तो और देन हो ही नहीं सकती। बेहद का बाप जो देता है वो तो बहुत ऊंची चीज देता है। कृष्ण और राधा को जो कुछ मिलेगा सतयुग में, वो शिव बाबा से मिलेगा या लक्ष्मी नारायण से मिलेगा? किससे मिलेगा? लक्ष्मी नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की स्टेज शिव बाबा की स्टेज की जैसी हो सकती है? हाँ, अनुवाद करने दो। एक मिनट। हाँ। Mataji asked that the confluence age heaven is the complete heaven, it's the perfect heaven. So Baba said yes, that is the gift of the unlimited Father, and there is nothing that can surpass the gift of the unlimited Father. That is the highest attainment that you get. Baba is asking about Radha and Krishna. The attainments that Radha and Krishna will get in the golden age, they will receive the attainments from Lakshmi Narayan. They won't receive it directly from Shiv Baba. So won't there be a difference between Lakshmi Narayan and Shiv Baba? Shiv Baba is greater than them. तो सतयुग की राधा कृष्ण का उतरने की कला में जन्म लेती है ना। सतयुग के शुरुआत से ही राधा कृष्ण का जो जन्म हुआ और उतरती कला शुरू हुई। संगम युग में उतरती कला नहीं है, चढ़ती कला। उनके जन्म के साथ, हाँ, उनके जन्म के साथ जन्म के उतरती कला चंद्रवंशी जैसी कला हो गई। Mataji asked that Radha and Krishna, who are born in the golden age, they are born in the degrading heaven. So Baba said yes, the time ever since they are born, the degrading stage begins. But in the confluence age, there is no degrading stage, there is just the ascending stage. You just go on rising high. चढ़ती कला का कारण ये है कि संगम युग में जो सृष्टि बनती है वो वाइब्रेशन से बनती है। सतयुग में जो सृष्टि तैयार होगी वो दृष्टि से तैयार होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं, उनका वाइब्रेशन काम कर रहा है, वाइब्रेशन से एक दूसरे से मिल रहे हैं, दृष्टि से भी नहीं मिल रहे, दूसरी इंद्रियों की तो बात ही नहीं। ऐसी ऊंची स्टेज है। और सतयुग में राधा कृष्ण नीचे दिखाए गए हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये स्थूल इंद्रियों की बात हो गई। जो स्थूल इंद्रियां हैं वो नीचे गिराने वाली हैं। स्थूल इंद्रियों का सुख भी नीचे गिराने वाला है। Baba said that the reason for the ascending stage in the confluence age is that in the confluence age, the creation takes place through the power of the vibrations, whereas in the golden age, it is through the power of the visions. Baba gave the example of the picture of Lakshmi Narayan. If you look at Lakshmi Narayan, you will see that they are not even looking at each other. They are creating their world through vibrations. So when they are not even looking at each other, then the question of the other parts of the body doesn't arise at all. On the contrary, the souls of Radha and Krishna, who are shown below, are looking at each other. The physical organs brings downfall. The pleasure of the physical organs also brings downfall. बाबा तो कहते हैं वाइब्रेशन से सृष्टि शुरू हो रही है, तो फिर भी कहते हैं कि ब्रह्मा की दृष्टि से, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा सतयुग में होता है? नहीं, फिर ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं, ये तो यहाँ की बात है। और ब्रह्मा कोई एक थोड़ा ही है, ब्रह्मा तो 5 हैं। चार तो मुख्य भुजाओं के रूप में दिखाए गए हैं संपन्न स्टेज में। विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा सो विष्णु। उन भुजाओं को चलाने वाला एक 5वां और है। जो चलाने वाला है, संकल्प, जो संकल्प की बात होती है वो चलाने वाला। हाँ जी, हाँ जी। She's saying that Baba says that the world is created through the vibrations, and it is also said that the world was created through the thoughts of Brahma. So Baba said, is Brahma present in the golden age? He is present in the confluence age. And as for Brahma, it has been said that there are 5 Brahmas. So the 4 Brahmas are shown in the form of the 4 arms of Vishnu. And the 5th one, he is the one who creates the world through the thoughts, the main one, who controls the 4 arms.
फिर बाबा कहते हैं दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि सुधर गई। तो सुधरी हुई दृष्टि है किसकी? हाँ, दृष्टि सुधर गई, वो तो सुधर गई माने बात की बात, लेकिन जो दृष्टि सुधरती है वो किसी के द्वारा सुधरती है या अपने आप सुधर गई? किसी के द्वारा से सुधर। कौन? शिव। तो शिव तो ज्योति बिंदु है, उसको तो आंखें ही नहीं है। मुकर्रर रखती तो। हाँ, तो कोई साकार रूप में है ना भगवान का रूप, उसके द्वारा ही दृष्टि सुधरती है। दृष्टि से सृष्टि सुधरना वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर एक की दृष्टि से सृष्टि सुधर जाएगी। जैसे कुमार का दादी ने चालू कर दिया, जो संदली पे बैठा वही दृष्टि देना शुरू कर दिया। वो समझते हैं हमारी संदली पे जो बैठा हुआ है तो वैसे समझो शिव बाबा हमें दृष्टि दे रहा है। तो ये अंधश्रद्धा है या पक्का श्रद्धा भावना है? अंधश्रद्धा है। Mataji said that the world reforms through the vision, Baba has said. So Baba said that the world that reforms later. The question of reforming the world comes later. But first, who is the one who reforms the vision? So she answered, it is Shiv. But Baba said Shiv doesn't have eyes of his own. So there is some corporeal body through whom he reforms the drishti, the visions of everybody, and then the world is reformed on the basis of the vision. But even in that case, it is not that the world is reformed through everybody's vision. Just like Kumarka Dadi started a tradition in the basic knowledge, she said that whoever sits on the sandali is the one who reforms the world through the visions. And she asked the students to consider that whoever sits on the sandali is Shiv Baba. It is not everybody who reforms the world. फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे जब सर्विस की हिम्मत करते हैं तो बाबा प्रवेश करके उन्हें सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं, शकास देते हैं, शकास देते हैं, वाचा की ताकत देते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं। कि वो पता नहीं चलता हैं? वहाँ फिर कहते हैं वो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है, मालूम नहीं पड़ता, कोई पक्का सबूत नहीं रहता इस बात का, लेकिन जो मुकर्ररत है उसके तो सबूत मिलते हैं मुरलियों में। ये अंतर है। Mataji said that when the children show courage to do service, the father helps them. So Baba said yes, the father cooperates with them and he gives them power, he gives them searchlight, he helps them through the words, through speech, he helps them through the mind and intellect, through the thoughts. So she asked that he does help them, but that thing is not seen, you don't have any proof of it. So Baba said yes, you don't have any proof of it, but you have the proof of just one personality, the corporeal body which comes in the Murlis. There is proof for just one personality, not for everybody. मामा तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भर्ती करने के बाद भी जब चले जाते हैं, कितने समय तक चले जाते हैं, फिर दूसरों के द्वारा जब सुनते हैं कि बाबा से मिलने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि हमारे लिए सीडी मंगवा दो, सीडी ले आना हमारे लिए। घर में बैठ के देखते हैं और कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं, तो उनके लिए क्या सीडी ले जाकर उन्हें देना चाहिए? कुछ न कुछ प्राप्ति तो करेंगे, तो देना अच्छा है। क्यों नहीं? जो वंचित हुई आत्माएं हैं, डायरेक्ट बाबा से नहीं लेने योग्य अपने को समझती हैं या कुछ कमजोरी आ गई है, तो उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहे तो अच्छा है ना। ठीक है। Mataji is saying that there are some children who do the bhatti and then they go away. They don't come back. They don't have any connection with Baba. But when they hear from somebody that they're going to meet Baba, then they ask them to get CDs for them. Baba's Murli's CDs. So Mataji is asking, should we get the CDs for them? So Baba said, let them make some attainments. The souls who are deprived of the knowledge, who don't consider themselves capable enough of taking the knowledge directly from the Father, they too should be made to have some attainments. So Baba said that you can take the CDs for them if they ask for it. 3 तरह की मुरली बताई, एक सन्मुख मुरली, एक टैप रिकॉर्डर से या वीडियो से,
और तीसरी पढ़ करके। तो जो सन्मुख है उसे बताया मुरली में फर्स्ट क्लास मुरली, सेकंड क्लास टेप रिकॉर्डर से ऑडियो या वीडियो, और थर्ड क्लास है कागज़ से पढ़ करके। तो उनको इतनी हिम्मत नहीं है हम फर्स्ट क्लास लें, या इतना निश्चय नहीं बैठा हुआ है क्या हम उतना कनेक्शन जोड़ें, उतना गहरा कनेक्शन जोड़ें। तो इसलिए वो जितने में संतुष्ट है उतना तो दे दें, मंगाते हैं तो दे दीजिए। Baba said that there are three kinds of murlis. One is the Sanmukh Murli, which you listen face to face from the Father. The other Murli is the one you listen on tape recorder or you see on TV. And the paper Murli, which you read, is the third class Murli. The one which you get face to face is the first class Murli. The Murli you see on TV or listen on tape recorder is the second class Murli. And the one you read on paper is the third class Murli. So Baba said that the deprived souls, if they don't consider themselves capable enough of taking the first class Murli, or if they don't have courage to make a deep connection with the Father, then give them whatever they are satisfied with. और बाबा कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वही बुढ़ापे के कारण या शरीर के स्वास्थ्य के कारण भक्ति करने की उनमें हिम्मत नहीं आने की। तो फिर भी जब वो देखते हैं कि हम जा रहे हैं बाबा से मिलने, तो रोते हैं, जैसे तड़पते हैं कि बाबा से कहना कि हमारा क्या होगा। तो ऐसी आत्मा के लिए उनका क्या होगा, उनका पूर्व जन्मों का जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही होगा। और जिसने शरीर छोड़ दिया है, जिसने तड़पते अगर याद में सही छोड़ दिया तो नजदीक आ जाएंगे, अच्छा ही होगा ना। अंतमते सुगते हो जाएगी। Mataji is saying that there are some souls over there who, due to some reason, because of their disease or some illness, they are unable to come to meet Baba, or some of them are too old to come here to visit Baba or to do the bhakti. So they become very restless when they hear that somebody is going to meet Baba. They too feel like coming. So they ask Baba, what will happen of us? So Baba said that as are their deeds in the past birth, they will get the same kind of fruit. And then Mataji asked, what about those who leave their body while becoming restless? What about those who leave their body? Baba said that those who leave their body in the remembrance of the Father, they will come close to Him. Because whatever are your thoughts in the end, you reach the same kind of destination. बाबा तो कहते हैं जो बच्चा 2 महीने 3 महीने क्लास में नहीं आते हैं, तो क्लास शुरू कर देते तो बच्चा मर गया। क्या समझा? जो बच्चा 2 महीने 3 महीने क्लास में नहीं आते तो बाबा कहते हैं वो बच्चा मर गया। हाँ, तो ऐसी आत्मा अगर कहे कि मेरे लिए सीडी ला दे, सिर्फ क्लास में ना आने की बात नहीं। हाँ, 2 महीने चिट्ठी भी नहीं लिखी, हाँ, लेटर भी नहीं लिखा, ईमेल से कनेक्शन भी नहीं किया, फोन से बात भी नहीं की, तो मर गया। तो सामने हो जाएगी तो रोने लगे जब और कहते हैं कि भर्ती करेंगे, फिर से भर्ती करेंगे, कहते हैं कि फिर से भर्ती करेंगे। 2 महीने में 3 महीने, ये ज्ञान ऐसा है कि इसमें अगर हम बाबा की रोज मुरली नहीं पढ़ेंगे, बाबा की कनेक्शन में नहीं रहेंगे, बाबा के परिवार के कनेक्शन में नहीं आएंगे, तो ये ज्ञान उड़ जाता है। फिर भी हम उनको सलाह देते हैं कि भले आओ क्लास में। हाँ, फिर भी हम उनको सलाह देते हैं कि भले आओ क्लास में, संगठन में आओ। 2-3 महीने के बाद आएंगे तो ऐसा ठीक है हैं? अगर उनको सलाह दे। हाँ, गीता पाठशाला में बुलाइए। हाँ, अच्छी बात है। बाबा ने अपने लिए समझ लिया, मर गया तो बाबा नहीं मिलेंगे। तो अगर उसकी इच्छा है फिर से बाबा समझते हैं, उसकी इच्छा है कि फिर से भर्ती करेगी, फिर से बाबा से मिलेगी, मिलो, अच्छी बात है। Mataji asked Baba that Baba has said that the children who don't attend classes for 2 to 3 months, Baba considers them to be dead. So Baba said it is not just about class. If they're not at all in connection with Baba, whether it is through the letters or through email or through the phone, if they're in connection with Baba in no way, then Baba considers them to be dead.
So Baba said that this knowledge is of such a kind that if you don't listen to the murlis, or if you don't come in the contact and connection of the godly family, then this knowledge vanishes from the intellect. So Mataji asked Baba, can we call such souls who don't attend classes for months together, can we call them to the Gita Pathshala to listen to the classes? So Baba said, yes, you can call them. It is for Baba that they have died, but you can call them to the Gita Pathshala for classes. दोबारा भट्टी कर लेंगे तो ज्ञान रिवाइज हो जाएगा। भट्टी में जाने से माहौल उनका बदल जाएगा, खान पान वो भी बदल जाएगा, और उन्हें अपनी अवस्था का पता चलेगा कि वहाँ जाने से हमारी अवस्था क्यों चढ़ती है, बाहर की दुनिया में रहने से हमारी अवस्था क्यों नीचे गिरती है। वो अन्न दोष और संग दोष का उन्हें ज़्यादा महत्व का पता नहीं चला। Mataji said that those souls, those who are not in connection, they ask to do bhakti. They say that we'll do the bhakti again. So Baba said that it is good if they do the bhakti again, because the knowledge will be revised again, and their way of thinking and their eating and drinking habits will also change in Baba's house. Then they will realize why their stage is not so good in the outside world and why their stage becomes so good in Baba's house. So if they come back as a God, they will take the newly recruited person, newly recruited knowledge. If they come back, those who have not come for 2 or 3 months, if they come back from the knowledge, it is a newly recruited person. वरना जैसे कोई 2-3 महीने तक नहीं किया क्लास और फिर मतलब दोबारा भट्टी कर लिया, तो क्या फिर वो नया व्यक्ति है, दोबारा नया बच्चा, माना उसको नया बच्चा माना जाएगा? नया नहीं माना जाएगा, लेकिन पुराने को फिर नए में रिजुविनेट किया। He won't be considered to be new in knowledge, but he was rejuvenated from an old one into a new one. और बाबा जैसे भारत में जैसे सेवा होती है, जैसे यहाँ सेवा होती है एडवांस की, तो विदेशों में तो वैसे नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ मॉरिशस में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जैसे बताया कि लौकिक साथ में है, और जैसे वहाँ की परिस्थिति है, तो क्या यहाँ की तरह वहाँ पर ऐसा स्थान नहीं बन सकता है? जैसे कि यहाँ जो 2500 साल भक्ति मार्ग चलता रहा, उस भक्ति मार्ग का फाउंडेशन तो यहाँ संगम युग में पड़ता है। तो यहाँ जो भक्ति मार्ग और शास्त्रों के संस्कार पड़े हुए हैं, वो विदेशों में संस्कार नहीं है उतने, इसलिए उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे कैसे बेसिक के सेंटर्स हैं सब जगह उनके सेंटर्स हैं, और कैसे लोग जाते हैं सेवा करने, विशेषकर माताएं वे घर से संघर्ष करके जाती हैं सेवा करने। फिर कई माताएं ऐसी होती हैं कि वे सोचते हैं कि जैसे यहाँ बच्चों को ठिकाना मिलता है, वहाँ भी ठिकाना मिल जाए तो वे सेवा कर सकेंगे। और जब कहाँ सेवा कर सकें? बेसिक में, मतलब कि जैसे बेसिक में है सब जगह सेंटर्स, हाँ, तो वहाँ पर तो सिर्फ जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो वहाँ पर रहती हैं, वे लोग वही सेवा करने के लिए जो क्लास फॉलो करने आते हैं, वे लोग जाते हैं सेवा करने। कौन एडवांस वाले जाते हैं? नहीं, बेसिक वाले जाते हैं। बेसिक वाले का ऐसा चलता है कि जो क्लास में आते हैं वही लोग वहाँ पर जाकर सेवा करते हैं, साफ सफाई ये वो जो कुछ भी चाहिए, और वे लोग सिर्फ मुरलियाँ पढ़ के सुनाते हैं। तो और वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ठिकाना मिलता है, जो पीड़ित लोग हैं, जो घर परिवार से पीड़ित हो चुकी हैं, उसका स्थान नहीं है घर में, अब उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ जाएं। कैसे यहाँ पर एक ठिकाना है कि बाबा के घर में आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनका क्या होगा? और चले जाते हैं जबकि नहीं मिलता है कोई रास्ता। तो जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे वो भी भक्ति मार्ग में चल रहे हैं,
वहाँ तो भगवान को मिलने का रास्ता नहीं बता रहे एडवांस में क्या होगा ऐसा हैं। जब एडवांस में ऐसा है, एडवांस के हिसाब से यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या अभी तो आपने कहा एडवांस वाले, हम तो एडवांस वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब कि बेसिक में वैसे चलता है, बेसिक में चल रहे हैं। तो अभी एडवांस के हिसाब से जैसे मॉरिशस में तो एक ही हैं? जो हमने अनुभव किया कि एक ही ऐसी जगह है जहाँ से भी गीता पाठशाला चल रही है, और वो एडवांस की हाँ। हाँ तो अब जो आत्माएं निकल रही हैं उनमें जो आत्माएं ऐसी हैं कि अब उधर से टूटकर इधर आ रही हैं, और घर में भी वो टूटी हुई है, जैसे कि घर से कोई उम्मीद नहीं रहता। तो उन लोगों का क्या होगा जो वो ठिकाना चाहते हैं, ठिकाना नहीं मिलता है, फिर कहाँ ठिकाना चाहते हैं एडवांस में? हाँ ठिकाना एडवांस में ठिकाना नहीं मिलता है। मतलब कि जैसे यहाँ मिलता है ठिकाना, वैसे वहाँ जैसे कि हम कह रहे थे कि एक सेवा केंद्र ऐसा हो कि ऐसी आत्माएं जो आप मिनी मधुबन की बात कर रहे हैं। यानी कि सरेंडर होने की, सरेंडर होने की बात यहाँ की बात है। बाबा वो माता नहीं कहते उसके पास कुछ हाँ, नहीं अब है। वो माता जिसको कोई ठिकाना नहीं है, तो वो चाहती है कि वो क्यों गीता पाठशाला ठिकाना नहीं मिला? हाँ वो तो है, हाँ। लेकिन ठिकाना रहने के लिए कैसे वो कहीं पर घर बार छोड़ना आशा चाहते हैं। है ही नहीं घर में उसका स्थान। हाँ। तो वो कभी बाहर सोएगी, कभी रात बिरात को बाहर बिताएगी। अभी कितनी मुश्किल से भी किराया लेकर, किराए पर कोई घर 2000 में एक कमरा लेकर रह रही है। अब उसमें भी उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए ऐसी मना परिस्थिति में- विदेशी जो हैं हाँ, तो हम वो विदेशी जो हैं अगर सरेंडर्ड होकर के रहना चाहें हाँ, तो नहीं रह सकते। तो यही पूछना चाहते हैं बाबा, क्यों नहीं रह सकते? जब हम सेवा के लिए तैयार हैं, हाँ। तो हम क्या ऐसा नहीं कर आप तो सेवा कर ही रहे हैं। हाँ बाबा, तो व्यवस्था होनी चाहिए, हैं? व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने एक घर देखा है कि वहाँ पर हम सेवा स्थान बनाए, जहाँ पर जो भी सेवा स्थान बनाएंगे वहाँ भी सेवा के लिए जो बैठेंगे वो भी तो आपकी तरह मनुष्य ही होंगे। हाँ बाबा, तो खास बात क्या हुई? खास बात यही होगी कि वहाँ जो लौकिक में हम कर रहे हैं, इधर लौकिक है, यहाँ यहीं पर थोड़ी सी जगह है जो हम ये वहाँ पर क्लास चलाते हैं और कोर्स देते हैं। तो ऐसी माना गीता परिस्थिति- पाठशाला में आप शरण नहीं दे सकते। हाँ, ये जो सब- भाई बहन हैं अपना पूरा घर गृहस्थ छोड़ करके, हमारे यहाँ तो कोई भाई वो बहन धंधा नहीं दौरी है। छोड़ करके इस ईश्वरीय सेवा में ही लगना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ठिकाना नहीं दे सकते। हाँ आप नहीं ठिकाना दे सकते तो बाबा तो आया हुआ है। हाँ बाबा, हाँ, तो बाबा मना कर रहा है ठिकाने देने के लिए। तो इसीलिए हम तैयार हैं कि हम एक घर किराए पर लें ऐसा जिसमें लौकिक अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? क्योंकि वे नहीं पसंद करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं ठिकाना देने का किसी का, तो वे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। घर के बच्चे हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे काम में गीता पाठशाला चल रही है तो उसमें रुकावट भी नहीं डालते हैं, लेकिन ठिकाना देने के लिए वो घर में भी रहते हैं वे लोग। तो बाबा के घर में आने के लिए मना है क्या? तो हम क्या अलग से घर, जैसे बाबा बोलते हैं किराया का घर लेकर चलाने का, तो हम 4-5 लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? भाई लोग कहाँ जाएंगे? भाई लोग तो है नहीं हमारे संगठन में। अरे आप मना कर देंगे उनको? नहीं, मना नहीं करेंगे। हाँ। अभी के लिए संगठन में हमारा भाई लोग आएंगे तो मना कर देंगे फिर आप उनको रखने के लिए? नहीं, मना तो नहीं करेंगे। फिर बाबा जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। बाबा कैसे बोलेंगे? अगर बाबा बोलेगी घर में नहीं किराया तो माता की हम लोग हम तैयार हैं इसके लिए, तो हम ऐसी माताओं को भटकने नहीं देंगे। मिनी मधुबन खोलना चाहते हैं मॉरिशस में। ऐसी परिस्थिति में आपको तो वहाँ आना पड़ेगा। वो एक जगह और हम सेवा के लिए तैयार हैं। 2000 मिलते हैं, तो 2500 घर भी किराया दे देते हैं, और उसके खाने के लिए और बाबा ने तो खुद ही बोला हुआ है व्यक्तवाणी में। किसी ने पूछा बाबा विदेश में क्यों नहीं आते, तो बाबा ने जवाब दिया आएंगे, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे, जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। हम समझ गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जैसे मिनी मधुबन। ठीक है बाबा, उत्तर मिल गया, रास्ता साफ है। हाँ उत्तर मिल गया बाबा। हाँ जी। मिनी मधुबन खोल दिया और लाएंगे। वैसे हम लेकिन 4-5 से तैयार। उसके लिए भी थोड़ी
थोड़ी नियमावली बनाई हुई है ना, हाँ बाबा, क्या इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए तभी खोलें। हाँ बाबा, हाँ जी, ये सामान्य गीता पाठशाला में भी 15-20 लोग आते हैं, और मिनी मधुन में अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो मिनी मधुन खोलने से क्या फायदा है। मकान को मिनी मधुन थोड़ी कहा जाता अब है, तो बढ़ रहा है बाबा, हैं? अब तो बढ़ रहा है। हाँ, जो बढ़ रहा है तो ठीक है, बाबा क्यों मना करेंगे, और आगे चल के हो जाएगा, हैं? आगे चल, हाँ हो जाएगा बाबा, हाँ, हाँ हो जाएगा, हाँ रास्ता साफ है। Mataji asked Baba that the kind of service that takes place in India, there are many people who listen to the knowledge, but this kind of service doesn't take place abroad. So what is the reason for that? Baba said that for 2500 years, the tradition of bhakti and the sanskars of reading the scriptures which the Indians have, the foreigners don't have it. This is why the Indians grasp the knowledge quickly. The foreigners are not able to grasp the knowledge that quickly. And then she was asking about opening a center, taking a house on rent and then opening a center there. So Baba has said that Baba has anyway said in the Murli that you should make your Gita Pathshala such that it should appear like a mini Madhuban. And even for that there is a rule. Even in the general Gita Pathshalas, if there are 15 to 20 members, then Baba goes there. There are at least 15 to 20 members in a Gita Pathshala. So the Gita Pathshala or the mini Madhuban should also be opened according to the rules. And Baba Dada has anyway said in the Avyakta that wherever you make the Baba said that somebody asked a question in the Avyakta why doesn't Baba come to the foreign countries? So for that Baba gave the answer that wherever you open mini Madhubans, Baba Dada will come there. मैं अपने घर पर रहने की जगह दे दूं। बाबा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया जो प्लानिंग कर रही है ठीक है, ठीक है। बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, हाँ बाबा, वो दूसरे घर में थोड़े जाके बैठ जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। Baba said that Baba's children will do service through their own body, mind and wealth. They won't sit in somebody else's house. अभी और लोग ऐसे हैं बाबा, इस तरफ से ये लोग हमसे बहुत दूर हैं। आने में मतलब मॉरिशस के हिसाब से 200 रुपये लगते हैं बस का किराया आने जाने में। जो रिटायर्ड लोग हैं तो उनको बस का किराया नहीं देना पड़ता है, उनका पास है। तो वैसे रिटायर्ड है माता जी, और वो माता जी रिटायर्ड नहीं है, तो अच्छा, इतना खर्चा होता है, रिटायर्ड लोगों को वहाँ किराया ही नहीं देना पड़ता। बस को नहीं देना पड़ता है। तो अभी जो आत्माएं निकल रही हैं, अभी निकलने वाली हैं, उनसे बातचीत कर ली है माताओं ने। तो इनको हमने कहा कि भट्टी करने के बाद ही उनकी सेवा करें। तो वे लोग लाएंगे, उनको निकालेंगे। तो अब समझ लीजिए उस तरफ से उतने दूर से आत्माएं आएंगी। तो हमारा स्थान भी ऐसा होना चाहिए कि जो वहाँ पर सब नियम हो, जबकि लौकिक में रहकर उन नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है। होगा, धीरे धीरे होगा। ड्रामा जो मिसल चलता है। और अभी आसपास से जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे बेसिक वाले देखना ही पसंद नहीं करेंगे, सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दूर दूर तक हम लोग गए, बेसिक वालों से जिनसे कनेक्शन था, तो कोई मिलना भी नहीं चाहता है, आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। बोलते हैं उनको वो बहुत प्रोग्राम है, बहुत काम है, बहुत कॉन्फ्रेंस बढ़ रहे हैं, हमको समय नहीं। तो इसलिए उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ जब ये माता निकली है तो इनका अनेकों से कनेक्शन हो रहा है। तो इस पर तो हमको बल देना चाहिए। वे लोग तो आना चाहते थे, तो हमने बोला आपने पास नहीं किया, नहीं आ सकते। जब मैंने उन लोगों से कहा तो एक भाई भी है युगल माना, वो दोनों आना चाहती है माता। तो ये माता ने बोला आपने कोर्स नहीं की, भर्ती नहीं की, तो आप सेवा नहीं बोलना, सेवा नहीं कर सकते। तो अब तक कर दिया ना, अब जाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि बाबा से मिलना चाहिए, हाँ, पहले बाबा विश्वास करना चाहिए कि भगवान है, तब दूसरों को बोल सकेंगे कि हाँ है।
तब लेकर चलेंगे। तो इसलिए जो भक्ति जहाँ करके भगवान होगा तो भगवान कहेगा कि हाँ मैं हम हूँ, कहेंगे। हैं? बच्चे सबूत देंगे ना बाबा। और वे लोग मधुबन जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का उनके बाबा आने प्लानिंग वाले है हैं ना मधुबन 24 जाने का, को। माउंट आबू। तो अब वे लोग नहीं जाएंगे, रोक दिए उन लोगों को। वो भी रुके ऐसे हुए हैं। बर्बाद होगा ना। ये इधर से जाएंगे। गुलजार दादी वाला पॉइंट सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। उसको मालूम 15-20 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे साबित होता है, मुरली से ही साबित हो जाता है, अव्यक्तवाणी से ही साबित हो जाता है कि गुलजार दादी में शिव नहीं आ सकते, ब्रह्मा की सोल आती है। वो तो सुना है। वो ब्रह्मा थोड़ी देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला तो शिव है, और शिव आता नहीं है तो फिर लोगों को वहाँ जाने में इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा। तो उन लोगों को मालूम नहीं है। अब ये लोग फिर भी जाएंगे। हम मंदिरों में जा नहीं गया तो वहाँ से उतना जैसे कठिनाई से हम लोग आते थे, सवेरे निकलते थे, घर जाते थे 5 बजे सांझ को, इस माता के आके बस दिया कठिनाई से, और ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते, स्कूल तो बच्चे पे भर देते हैं बस में भी जाते हैं तो खड़े सफर करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए तो मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये तो कहते हैं मैं तो एंजॉय करती हूँ, फिर लंबा ये रास्ता नशे में जाने आती है, नशे में जाती है, उमंग उनका बढ़ता ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है तो फिर भी कि हम लोग- मेरा पर्सन जो मिलते थे थोड़ा बहुत वो कटा गया, तो फिर भी मिलेगा तो हम जारी रखेंगे और इनको- बेसिस पे भी जाएंगे, निकालेंगे एक एक इनको पेंशन मिलता है, ऐसे इनको कोई बीमार के लिए, बीमारी के लिए, आस्थमा के लिए, और इनका कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए उनको पेंशन मिलता है। तो कट गया, हाल में शुरू हुआ मिलना, हाल में कट गया। और वो मसाज का काम करती है थोड़ा बहुत, वो ब्राह्मण माताओं को डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा उनको हो जाता है गुजारा, और पति उसके साथ कोऑपरेट नहीं होते हैं, तो अनेक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी ये हिम्मत करके चलती है, ज्ञान में बहुत सालों से चल रही है। पति तो देखना पसंद नहीं करते, देखते ही गाली देते हैं और थूकते हैं, कहते हैं आप नारी हो, वैसे करते। अभी वैसे वो भी इस माता के यहाँ खाने पीने का, इसके यहाँ ये लोग मिलकर पकाते हैं, खाते हैं। इनके युगल भी साथ नहीं रहते हैं, इसकी भी 2 लड़कियां हैं इनके साथ में, उनकी भी वो दूसरा अलग से रहते हैं, और उनका भी यही हाल है। तो ये दोनों मिलकर इकट्ठे एक जगह खाना बनाते हैं और अपना सेवा करने जाते हैं आश्रम में। लेकिन आपके पास युगल को कहा कि मैं जा रही हूँ, कहा हमेशा के लिए, मैंने बोला हमेशा के लिए क्यों आऊँगी। तो बोला आपकी मर्जी, आप देखो जहाँ जाना चाहते हो जाओ। क्या से नहीं बोला, बोला मैंने बोला आप जाते हो तो आप तो नहीं कहते, मैंने तो आपको रुकावट नहीं किया, तो मैं तो बुरी काम नहीं कर रही, तो क्यों रुकावट डाल रही? कुछ नहीं, मुझे सगा कह दिया ना तो मैं हल्का हो गई और चली आई। ये छुप कर आने वाली थी, क्योंकि वो हंगामा करने लगता है, पुलिस चला जाता है रिपोर्ट देने। वो माउंट आबू गई थी तो बहुत हंगामा किया था, ऐसे घर में कोऑपरेट नहीं होता है। तो जब चली गई थी माउंट आबू तो पुलिस में चला गया रिपोर्ट देने। पुलिस में रिपोर्ट देने से क्या होगा? माने धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, गायब हो गई है। हर व्यक्ति को वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है मॉरिशस में। ये ऐसी बात तो नहीं है। तो आके वो कुछ कहते हैं ना उसको, ताकि फिर से नहीं झगड़ा करेगा। ब्रह्मा कुमारी के नाम से मतलब विरोधी बन जाते हैं। प्रोटेक्शन है वहाँ, अक्वाल प्रोटेक्शन मिलता है, नारी को प्रोटेक्शन मिलता है। वही लोग जो कर रहे हैं अच्छा है, हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब तो बाबा मिला है ना, अब हम भी आवाज उठाएंगे।
ठीक, और कुछ बात हो तो बताइए। इसमें साइन करना है, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं, कोई किसी दिन 4 आते हैं, किसी दिन 5 आते हैं, कोई दिन सप्ताह में 1 बार आता है, कोई सारे दिन में भी आते रहते हैं। हाँ सारे दिन में। तो सारे दिन मतलब कि कोई जो आज आएगा वो कल नहीं आएगा, कोई परसों आता है, कोई रोज आता है, 4-5 रोज आते हैं, और ऐसे करके चल रहा है बस। अब इसमें एक बुढ़ी माता है, एक तो अब साइन करना सीख गई है, तो आप देखेंगे जो बुढ़ी माताएं हैं उनकी छाप है। जयंती माता। हाँ, अब वो साइन करने लगी है, बहुत खुश है वो कि वो साइन कर रही है। कहा बोलना बाबा से जाकर के मैं साइन कर रही हूँ। और वो बहुत रेगुलर है, वो भी यहाँ जो लोग आए हैं ये रेगुलर है। बोलो बोलो बोलो। There is one point of Murli, if I can read it. There is something I don't understand. अब वो बोल रही है, एक मुरली पॉइंट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ के बताना चाहती हैं। हाँ। यहाँ तो तुम जानते हो कि यह जगदम्बा जगत पिता जो स्थापन अर्थ निमित्त बन हुए है, यही फिर पालनकर्ता विष्णु लोक में बनेंगे। I thought that Vishnu Lok belonged to the deity. It was about not establishing Stapan, nurturing the deities, and that belonged to Lakshmi. So why is it Jagadamba here? मुरली में ऐसे उसमें बोला ना कि जगदम्बा निमित्त बनती है, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये समझा मैंने सतयुग की स्थापना के निमित्त ना, वो जब आएगी तो सतयुग स्थापन होगा ना, विष्णु लोक जो है उसकी माने उसमें लक्ष्मी बनेगी ना निमित्त। विष्णु लोक माने 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में एक भुजा जगदम्बा भी है, वो जब तक ऐड नहीं होगी तब तक विष्णु लोक नहीं बनेगा। बताओ। Baba is saying that Vishnu means that he has 4 arms, and among the 4 arms Jagdamba is also included. If she won't be included, Vishnu Lok won't be established. Okay. Another Murli point. Okay. Brahma Baba Purusharthi hai. शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। शिव बाबा, I thought that was the role of Shiva in the body. So why is not Prajapita Brahma? Why is it Shiv Baba? फिर से रिपीट करिए। ब्रह्मा बाबा है पुरुषार्थी। शिव बाबा पढ़ो। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी है। शिव बाबा है पुरुषार्थी। शिव बाबा है पुरुषार्थी। जो शिव बाबा वो है जो ऑलराउंड पार्टधारी है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, तो वो है शिव बाबा, निराकार प्लस साकार। और बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, माना शिव ज्योति बिंदु जो है वो पुरुषार्थ कराने वाला है दोनों को, ब्रह्मा को भी और शिव बाबा को भी। शिव बाबा there was one Vartanap that was
saying from 18 there will be the era 111, and then the students spoke about an age of sorrow. Baba said in the Vartala, yeah, there will be sorrow like 2,500 years of sorrow. So I thought that was Vishnu time, that Vishnu was coming in 18, and that we got a lot of enthusiasm. That was the start of Vishnu era. So our stage would go up immediately. This is what I heard in other discussion, clarification. वो बोल रही है ऐसा सुना है 18 में संवत 111 शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से विष्णु लोक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी बोला है डिस्कशन में कि 2500 वर्ष दुख भी रहता है, तो हमने ये सोचा कि 18 से चढ़ती कला की शुरुआत होगी, तो फिर वहाँ दुख भी होगा क्या, मैंने कैसे होगा? वो ग्रुप अलग होगा। जो विष्णुलोक का ग्रुप है, विष्णुलोक में ऐड होने वाला है या विजयमाला में ऐड होने वाले हैं, वो छोटा ग्रुप है, वो संख्या बाद में बढ़ती चली जाएगी। अब सारे ही ब्राह्मण परिवार थोड़े ही उसमें आएंगे। So, from this is a recent clarification from 18 to 27. The whole kingdom is prepared. So when the whole kingdom is prepared, the whole kingdom will come up to 27. Is it about the 16,108? You're talking about year 27? Yes. ऐसे बोला है 2018 से 2027 तक राजधानी स्थापन हो जाएगी। 37 तक स्थापन हो जाएगी राजधानी, तो उसमें सारे 16,000 जो भी हैं सारे तैयार हो जाएंगे। Is that the time? 27 तक। वही 27 ना बाबा। और राजयोगियों के लिए है, जो राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोग सीखने वाले हैं, उनमें राजाएं हैं ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले राजाएं पहले बनेंगे, फिर जो बच्चे हैं वो तो प्रिंसेस हैं, वो तो बात की बात है। Is this preparation through tapasya? नहीं, ये जो तैयारी होती है बनने की तपस्या से होती है। तपस्या से ये ऐसे बनते हैं ना तैयारी। माउंट आबू में जो तपस्या होती है उसके द्वारा, या कुछ और तरीके से? ठीक है। वो पूछ रहे कि 16,108 तक तैयार हो जाएगी 27 तक। माने बाहर की दुनिया वालों को भी तो संदेश मिलेगा, बाहर की दुनिया वाले भी तो अपना हिस्सा लेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति का। उनको टाइम होना चाहिए कि नहीं बाद में? 27-28 से लेकर के फिर 37 तक का उनका टाइम है दुनिया वालों का। So it means there needs time afterwards from 27 to 36 for the rest. तो माता जी बोल रहे 27 के बाद जो भी टाइम है वो बाकी लोगों, हाँ, दुनिया वालों के लिए, विदेशियों के, विधर्मियों के लिए, देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालने के लिए, पक्का फाउंडेशन डालने के लिए 17-18 से लेकर के 27-28 तक। So it's also the time of the Mahabharata war, so there is this religion, conflict of religions, and there is the time of the Shaktiya supposed to be facing the other religions. So if I understand it, so it means that there is, the tapasya and the knowledge time, the fight of knowledge is that at the same time. तो जो तपस्या का समय है उसी समय जो ऐसे बोलते हैं ना विधर्मियों से शक्तियां सामना करती हैं, वो तो महाभारत का जो टाइम है वो उसी पीरियड में होता है, तपस्या करते समय ही। महाभारत का टाइम तो बहुत थोड़ा दिखाया, 18 दिन दिखाया गया है।
शास्त्र में तो लंबा टाइम थोड़ा ही चला है महाभारत युद्ध। So Mahabharata after तो महाभारत की जो बात है वो तपस्या के बाद होती है। हाँ जी, महाभारत जो है उसका नाम ही है महाभारत, माने एक की बात नहीं है, सभी भारतवासी मिलकर के वो सभी भारतवासियों का युद्ध है। और युद्ध तो माया का युद्ध है, कोई हिंसक युद्ध थोड़ा ही है। Internal war with in the mind. माने अंदरूनी माने बौद्धिक रूप से युद्ध होगा प्रत्येक व्यक्ति का। हिंसक युद्ध नहीं है, माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का युद्ध है। और When Baba says about all the religions, the PVKs of one religion will join the BKs, will join the outside world, so it's not about this time. तो जो बाबा बताते हैं कि एडवांस का एक ग्रुप बीके से मिलेगा, बीके का ग्रुप जो है वो दुनिया वालों से मिलेगा, ये जो बात बताते हैं तो ये उस समय की बात ही। हाँ जी, हाँ जी। Another line of clarification. भले ब्रह्मा बाबा दादा ने शरीर छोड़ दिया तो जिस माता के तन में भी वो शिव सुप्रीम सोल और ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो प्रवेश करके वो स्वर्ग की गेट का उद्घाटन कराती है। इस बात को बोल जाएगा। ये जो बताया है कि जब परमात्मा मुकर्ररत नहीं रहता तो वो जिस तन में भी प्रवेश करता है उसके थ्रू स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं, तो ये क्या जगदम्बा के लिए बताया है? मुकर्रर तन नहीं रहता, माने यज्ञ के आदि में साकार तन जैसे 42 में शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा शरीर ब्रह्मा बाबा भी शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं 42 में नहीं, 42 में नहीं बाबा, 69 में ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ देते हैं तो ऐसे बताया है ना कि जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही गेट खुलवाते हैं। हाँ। तो ये पॉइंट जगदम्बा के लिए है। जगदम्बा उस समय कहाँ थी? 69 में जगदम्बा थी नहीं। The point here, it was saying that Brahma Baba, who left the body in the past, he enters this mother, and in the future, Shiv, Supreme Soul, with Brahma Baba will enter to open the gates, to make her open the gate. Karate, Udghatan Karate hai. ना पॉइंट ऐसा है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है तो वो जिस तन में प्रवेश करती है ब्रह्मा बाबा, हाँ, माने शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा की बात है कि शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, और ब्रह्मा की बात थोड़ी है। नहीं, वो नहीं, ये क्लैरिफिकेशन की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो स्वर्ग के गेट खोलते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया है तो वो आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है तो उस तन के द्वारा निमित्त बनती है गेट खोलने के। ठीक है, जगदम्बा है, तो वो तन जो है वो जगदम्बा का है। हाँ ठीक है, यही आपका प्रश्न था ना? हाँ जी। Okay, various time in the Vartalab question were asked about the world, that Parandam, there is a sphere, in a sphere of influence, so Shiv will be the first sphere of influence, and then Prajapita and the others, and also people asking about Paramdam being, where is it, on the right, up, down, and Baba keeps explaining it's not about being like that, it's about, the sphere of influence. And according to what science explains now, that in the infinitely small, the particles can travel in space and time. They can travel to the past, the future, and there is no distance. One particle in one end of the universe can influence another
particle in the other sphere of the universe. So does it mean that it's like the more subtle the soul is, it's not a question of distance, it's not a question of time anymore, it's a question of like being in another world, like being in a subtle world, being in a world that doesn't have distance anymore. Do you understand? Distance? I didn't get distance. It's geographically, there is no being near or far. It's not about that anymore. In the subtle world, it's beyond this space-time dimension. It's like another dimension. ये जो बताते हैं कि परम धाम पृथ्वी के चारों ओर रहता है, तो पहले परमात्मा है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसके बाद प्रजापिता घेर के रखता है, उसके बाद बाकी आत्माएं हैं, ऐसा है। और ऊपर नीचे कोई परम धाम नहीं होता, ऐसे बताते हैं। चारों ऊपर नीचे परम धाम नहीं होता है ना, कोई ऐसा कोई प्लेस नहीं है। परम धाम है, लेकिन पृथ्वी से परे है वायुमंडल, वायुमंडल से परे है स्पेस, स्पेस से परे है परमधाम। चारों तरफ ही है। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों तरफ बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है, जिसे आकाश कहते हैं, और उसके पार चारों ही तरफ परमधाम। वो ठीक है। माता जी ये पूछना चाहती है बाबा कि अभी जैसे साइंस वाले ऐसे कहते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, वो काफी दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ऐसा है। तो जो आत्माएं हैं वो भी सूक्ष्म होने के कारण वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते, जैसे दूरी जो बताते हैं, ऐसी दूरी की कोई बात है क्या, या वो दुनिया ही अलग हो जाती है तो वहाँ पे समय या समय की बात नहीं है, उनको आने जाने के लिए समय की बात नहीं है। आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाके अमेरिका में जाके जन्म ले सकती है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि है। मन बुद्धि को परमधाम जाने में कोई देर लगती है? प्रैक्टिस की बात है। कोई प्रैक्टाइज्ड है तो 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज में टिक जाते हैं, परमधाम में आत्मा पहुंच जाती है। Like Paramdam, there is not, the tree is not here in Paramdam or here, it's everywhere at the same time. तो परमधाम जो है कोई एक स्थान पे नहीं, मना पूरा घिरा हुआ है। हाँ जी, हाँ, और सारी दुनिया को, सारे वायुमंडल को, सारे स्पेस को घेर के है। Circumference, it's surrounding the whole earth. अभी हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं तो कहेंगे परमधाम ऊपर है, फिर इंडिया के जस्ट अपोजिट पृथ्वी में अमेरिका है, अमेरिका वाले कहेंगे परमधाम ऊपर है, तो दोनों तरफ हो गया ना। So this people in science can explain that now. Explain what? They can explain this idea of Paramdam, of being everywhere at the same time. I mean, science, because Baba says, science one day, everyone, all the subjects, all the people will be able to explain the knowledge, and the science is able to explain that now. तो ऐसे बाबा बताते हैं कि साइंस भी बाद में ये बात माने ज्ञान को समझेगी तो प्रचार करेगी, तो ये जो परमधाम की बात है कि चारों ओर है, इस बात को भी वो साबित कर सकती है। Quantum physics. Okay, in Vijayvihaar, the sister learned to do the course. In the West, is it a good idea to learn the course in English? माता जी बोल रही विजय विहार में बहनें कोर्स सीखती हैं, तो ये वेस्ट में, पश्चिम में भी ऐसे कोर्स सीख सकते हैं। हाँ? इंग्लिश में। हाँ, विजय विहार में इंग्लिश में कोर्स सीखती है। No.
हिंदी में नहीं, जैसे हिंदी में विजय विहार में सीखते हैं ऐसे इंग्लिश में वेस्ट में ये लोग सीख सकते हैं। कंपिल में भट्टी होती है तो कंपिल में जो पीछे बैठते हैं वो सीखते रहते हैं, बार बार आते हैं, दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं तो सीखते हैं ना। और तो वैसे भी सेंटरों में तो सिखाया ही जाता है। जो होशियार बहनें हैं वो डल बहनों को सिखाती ही रहती है। माता जी पूछ रहे हैं कि लंदन में जाके जैसे अमेरिका जाके हाँ, जो कोर्स करा सकते हैं ऐसे कुछ? हाँ, कोई होशियार है तो कोर्स करा सकते हैं। हिंदी नहीं, इंग्लिश में कोर्स इंग्लिश में ही। उनको कोर्स नहीं कराएंगे तो होशियार कैसे बनेंगे? बाबा का परिचय देने के लिए कोर्स तो कराना पड़ेगा। The sister, they learn it, they seem to be learning it by heart and then reproducing it. And this method doesn't seem to be adapted to the Western people. People are inquisitive and they will stop and they will ask, and is it more about knowing everything and then being able to see according to the person which way to go, or is it a good idea to learn, the whole Trimurti and the big pictures? ये पूछ रहे हैं कि ऐसे देखने में उनको आया कि बहनें पहले सब कुछ प्रिपेयर करती हैं, कोर्स पूरा प्रिपेयर करके फिर सुनाती हैं, जैसे उसको बाय हार्ट करके बताती हैं। लेकिन ये तरीका अच्छा है, या फिर जैसे विदेश में क्या होता है, आप कुछ समझाएंगे, कोर्स समझाएंगे तो वो पहले सब कुछ सुन के कुछ अगर उनको डाउट आता है तो पूछते हैं, क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका अच्छा है। तो सुनाने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है। कोई ज़्यादा होशियार है तो तुरंत का तुरंत जवाब दे देगा, भले कोई प्रश्न करता रहे, कोर्स के बीच में भी प्रश्न कर सकता है। सुनाने वाला इतना होशियार होना ही चाहिए। कोर्स कराने वाला कि कोई बीच में क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसका फट से जवाब दे दे वहाँ का वहीं। He is saying that it depends on the one who is giving course. He should be expert to this extent that he should be able to give answers to the questions in the middle of the course itself. He should have that much capacity. Otherwise, it all depends on the one who gives course. इनको ये पूछना था कि तरीका कौन सा अच्छा है, या पूरा ही बताना है, या तरीका तो सुनाने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है, कितना होशियार है। वो होशियार है तो तुरंत का तुरंत जवाब देना अच्छा है ना, बजाय इसके बताने कि हम बड़ी बहन से पूछ करके बताएंगे या बाबा से पूछ करके बताएंगे। तुरंत का तुरंत जवाब मिल जाएगा तो उसको तो संतुष्टि ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो लटक जाएगा। He is saying that if it all depends on the one who gives course, actually it is good that if you give the answers to his questions immediately, because he will be satisfied by it and you can proceed further. So it is good to give answers at the same time. So it's not about learning it by heart, it's more understanding in depth. तो ये वास्तव में पूरा कोर्स जो का त्यों सीखने की बात नहीं है, लेकिन समझने की बात होगी। सारा लिटरेचर बार बार रिवाइज किया जाए, मुरलियाँ ज़्यादा पढ़ी जाए, बाबा का जितना भी दिया हुआ एडवांस ज्ञान है उसका रिवीजन किया जाए बार बार। तो जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा वो तो तुरंत का तुरंत जवाब देगा। अध्ययनशील नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा रट लिया है तो फिर तकलीफ आएगी बताने में। Sometimes about the Shiv Shakti, I according to the clarification, I've got the impression it's about the Rudramala, sometimes it's about the Vijayamala. Is it one or the other or both? शिव शक्तियों के बारे में जब बताया जाता है तो ये कंफ्यूजन होता है कि वो रुद्रमाला के लिए कहते हैं या विजयमाला के लिए, या फिर दोनों ही। दुनिया के सारे काम शक्ति से होते हैं। शक्ति नहीं है तो काम नहीं संपन्न होगा, शक्ति है तो काम संपन्न होगा। और शक्ति क्या है? शक्ति तो या तो योग बल की शक्ति है
या तो पवित्रता की शक्ति है। योग बल से पवित्रता आती है, पवित्रता से योग बल आता है। कोई आदमी पवित्र रहेगा तो उसका याद जल्दी लगेगी, बेविचारी बनेगा याद नहीं लगेगी, अरस परस है। Okay, one thing, one last question maybe. Baba says that when there is the time of sorrow, the time is very long, and when there is the time of happiness, it goes very quickly. And according to my experience, like, you know, as children, when I was a child, the time between one Christmas to one Christmas seemed to be very, very long. And then when I reached adulthood, it came very quickly. And now it seems like, you know, the children, they don't live in the past, they don't live in the future, they don't have any worries, they are in the present. And it seems like it is like children, they live completely in the present. And for that, it feels like, you know, time should be going slow. And now, you know, everyone is saying time is passing so quickly, and it seems like, you know, the world itself is precipitating. So is that totally, you know, just feelings and it's wrong, or is there a way to match what Baba says about the time of sorrow and the time of happiness? बाबा ये पूछ रहे हैं, जो समय के लिए बताया जाता है कि सुख में समय जल्दी बीत जाता है और दुख में धीरे से पास होता है, तो बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं माता जी कि बच्चे पास्ट और फ्यूचर को मैंने बुद्धि में नहीं रखते हैं, लेकिन उनके लिए प्रेजेंट ही सब कुछ होता है। तो माता जी अपना बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो एक क्रिसमस से दूसरे क्रिसमस के बीच का जो समय है उनको बहुत लंबा लगता था, और अभी जब वो बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी बीत गया है, जो सुख का समय था वो जल्दी बीत गया। तो ये सिर्फ अपनी भावनाओं की ही बात है या फिर इस बात को लागू करने का कुछ तरीका है? और ऐसे लोग, जनता भी अभी कहती है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। जो सुख में है वो तो यही कहेंगे कि समय जल्दी बीत रहा है। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो लंबा ही टाइम हो रहा है। सबकी एक जैसी भावना थोड़ी रहती है। ट्रांसलेशन करो। वो समझ के बोल रहे हैं। तो ये वास्तव में समय की बात नहीं है ना कि समय जल्दी बीतता है या धीरे बीतता है। संगम युग में हम ब्राह्मणों के लिए कह सकते हैं कि समय जल्दी बीत रहा है, क्योंकि हमारी ज्ञान की दृष्टि है, इसलिए हम अपने को दुख की स्टेज को भी सुख में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर दुनिया वालों के लिए ऐसा थोड़ा ही है। के प्रश्न खत्म हो गए। प्रश्न खत्म हो गया। और वो भाई है, उस भाई को आने दो। क्या कुछ नहीं है? चल और कुछ रह गया हो देखो, ढूंढा ढानी, उलट पलट। I had questions, but in Vijayavira, the sisters explained because they, you know, according to the knowledge. So no, I don't have any. बोल रहे हैं उनके पास प्रश्न तो थे, लेकिन बहनों ने समाधान कर दिए हैं ज्ञान के हिसाब से, तो इसलिए ज्यादा प्रश्न नहीं है। हाँ सुख नहीं देना, दुख नहीं देना, वो पवित्रता की बात है। दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं। ऐसे क्या वो पवित्रता की बात है? नहीं, सभी तरह से बात है। दुख क्या को प्योरिटी की ही बात है। किसी को थप्पड़ मार दिया तो दुख देना नहीं हुआ।
किसी को गाली दे दी, उसके मुंह पे ग्लानि कर दी तो दुख देना हुआ ना। The idea, the impression I had about purity is someone who has good wishes, so is wishes is not naturally not giving sorrow and not being influenced. उन्होंने पवित्रता की जो गहराई समझी वो ऐसे बता रहे कि शुभ भावना जो है सबके प्रति होनी चाहिए, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड है ना कि सिर्फ थप्पड़ मारना या ऐसे नहीं। वो भी है शुभ भावना, शुभ कामना करना, वो भी पवित्र बुद्धि की बात है। पवित्र वाइब्रेशन होंगे तो शुभ भावना ही करेगा, उसके वाइब्रेशन ही खराब है तो अशुभ करेगा ही। बयालीस में सेवाग्राम ने शरीर छोड़ा तो उसी साल 1 फरवरी को जन्म कैसे हो गया है? उसी साल 1 फरवरी को सही छोड़ा सेवाग्राम ने 42 में शरीर छोड़ा। हाँ। तो उसी साल 1 फरवरी को जन्म कैसे हो गया? 42 में कब शरीर छोड़ा उन्हें पता है क्या? पूछने वाले को पता है उन्होंने क्या शरीर कब छोड़ा? ना कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे ना ऐसे। हाँ, लेकिन शरीर कब छोड़ा? 5 महीने तो ऐड तब करें जब वो शरीर छोड़ा। वो शरीर छोड़ने का टाइम पता है? कोर्स में बताते हैं। हाँ जी। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में बाप से राजयोग सीखकर वर्षा पाया होगा। हाँ, पिछले जन्म में राजयोग सीखा, अगले जन्म में वर्षा पाया। उसी जन्म में वर्षा थोड़ी पाया। कंटिन्यूटी है। ब्रह्मा की आत्मा राम की आत्मा में प्रवेश कर राजयोग सीख रही है। कृष्ण की आत्मा राजयोग कैसे सीखती है? प्रवेश करके। इस्लाम धर्म की आत्मा 150 वर्ष के बाद सेकेंड डायनेस्टी में आएगी। 150 वर्ष के बाद? 150 वर्ष के बाद। अच्छा, सतयुग में। हाँ, तो सब धर्म की बीज रूप आत्माएं होगी क्या? हाँ, होंगी। बीज तो कभी खलास होता ही नहीं। अभी संगम युग की कोई आयु निकलनी नहीं है, क्योंकि ये तो बीच का समय है। क्योंकि ये तो बीच का समय है। संगम युग की आयु निकलनी नहीं है, ये कौन सी मुरली में बोल दिया? मुरली पॉइंट है। निकालनी नहीं है माना, निकालनी नहीं है माना पूछा है। मुरली में तो बोला है बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 वर्ष दो। जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने 100 वर्ष के अंदर ही अपना सारा कार्य किया है। ये 67 की मुरली ये बोल रहे हैं। हाँ, 67 की मुरली है तो उसमें निकालनी नहीं है। ये बाबा ने बच्चों के लिए बोला ना, बाबा ने जो बताया है वो ही मानना है। बच्चों को अलग से क्यों निकालना है? संगम युग की आयु। याद गहरी होती जाती है और ज्ञान तमोप्रधान होता जाता है। तो बच्चों को सुनना चाहिए या नहीं? ज्ञान ना, अरे सुनेंगे ही नहीं तो और ज्यादा तमोप्रधान हो जाएंगे। किससे सुनना चाहिए? एक से सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? ज्ञान सुनाने में ये सात्विक स्टेज में कौन रहता है आदि से लेकर अंत तक? अरे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो 500-700 करोड़ के मुकाबले ज्यादा सात्विक स्टेज में रहता हो तो उससे सुनो कि नहीं है? ज्ञान को धारण करने में कोई आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले ज्यादा ज्ञान की स्टेज में रहता हो या शिव बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान ज्यादा धारण किया हुआ हो, ऐसी कोई आत्मा है या नहीं है? या सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं?
सारे ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं या कोई बचता भी है? अरे जो भी मुकर्रर रथ द्वारा बोला जाता है वो कल्याणकारी होता है, तो सतो प्रधान ज्ञान और तमो प्रधान ज्ञान की बात कैसे लागू होती है? औरों के लिए 500-700 करोड़ का वाइब्रेशन तमो प्रधान बनाता है। कोल्हापुर का अर्थ क्या है? कोल्हापुर का अर्थ क्या है? कोलू से कोला बना होगा। सौ साल सास के और एक दिन बहू का। 100 साल सास के और एक दिन बहू का, इसका अर्थ क्या है? ये कौन सी मुरली में बोला? मुरली का पॉइंट नहीं, बाहर का पूछा है। तो बाहर की दुनिया की बातें जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या चित्र बनाते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। दीदी दादियों को वर्षा कैसे प्राप्त होता है? बीज रूप आत्माओं से प्राप्त होता है, बीज रूप आत्माओं के थ्रू। ये कि आज में भी तो उन्हीं बीज रूप आत्माओं ने उनको श्रृंगार किया था गुणों से, तो जो आज भी श्रृंगार किया है वो अंत में भी श्रृंगार करने वाले बनते हैं। और बस वो इंटरनेट वाले पॉइंट निकाल दो। बाबा के पास से बोले क्या कुछ और पॉइंट्स पूछने वाले? क्या इंटरनेट के पॉइंट बता रही थी नहीं ये? बस वही, उतने ही है। किसमें? वो जो अभी पूछे, जो पूछे वही हो गए। चलो छुट्टी हो गई।